Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th. In that, exercise 2.2 and question number 6. Multiply and express as a mixed fraction. Okay? हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है and then after we have to express these number in the mixed fraction. Okay, so let's start. The first question is 3 multiply 5 and 1 by 5. इस तरह का क्वेश्चन है. Let's solve it. First one, 3 multiply we have to put as it is. Then after 5 and 1 by 5 is a mixed fraction. Okay, so we have to convert into simple fraction. So how can we convert into simple fraction? First we have to multiply these two number. Okay, always the number which are in this place we have to multiply. 5 5s are 25 and always we have to plus these number. Okay, 5 5s are 25 plus 1 26, so it will be 26 by 5. Okay, now here number 3 is in the place of numerator. So what is the number in denominator? So there is any no number, so we can put 1 or you can assume 1 also. And here 26 in the place of numerator and 5 is denominator. So multiply of numerator with numerator. So 26 multiply 3. So it will be 78. 3 6 are 18, 3 2 are 6 plus 1 7. 70 at denominator. Here we have 5. Here there is no number, so it will be 1. So 5 1s are 5. Okay, so we have to first one multiply these number, and now we have to express as a mixed fraction. Okay, so we have to do the 78 divided by 5. 78 by 5. So 5 1s are 5. 7 minus 2. So it will be 7 minus 5. So it will be 2. Here 8. Then after 5, 5s are 25. When we subtract it, 28 minus 25, so it will be 3. Remainers 3. Okay, so we have to put these number 5, 15 and remainder 3. Now we move into the right side of the number. ये एक मेथड है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 5 की प्लेस रिमाइंडर पे आ जाएगी, यहाँ पे जो था एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो ये हमें मिला मिक्स फ्रैक्शन 15 एंड 3 बाय 5. एक मेथड ये, और इसमें से आप डायरेक्टली भी रख सकते हो. ओके, जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे सेम रहेगा, मैंने बताया था, एंड जो रिमेनर है ओके वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो हमें आंसर मिला 15 वो यहाँ पे. आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो. ओके, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया. यहाँ पे आप आपका आंसर टैली भी कर सकते हो. 15 5 75 प्लस 3 78, 78 बाय 5. तो ये हमारा आंसर है, वो करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड बी. लेट्स स्टार्ट. The question is 5 multiply 6 and 3 by 4. 5 multiply, here we have mixed fraction, so we convert into simple fraction. 6 4s are 24 plus 3 27 by 4. Now 27 multiply by 5.
So 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 plus 3 13. 135 divided by 4. So do it. 135 divided by 4. 4 3s are 12. 1 5 4. Again 4 3s are 12. 3 मिला में. ओके, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं और आप राइट साइड में रोटेट करके भी कर सकते हो. ओके, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 3 रिमेनर है यहाँ पे एंड 33 यहाँ पे. अगेन यहाँ 4 डिनोमिनेटर में वो यहीं आएगा, जो आंसर मिला है हमें वो यहाँ पे, एंड रिमेनर है वो यहाँ पे मिल जाएगा. 30 एंड 3/4. ओके, तो ये क्वेश्चन 6 में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए. रिमेनिंग क्वेश्चन C, D, E, F. ओके, all these 4 questions are also same. We have to solve by this way, same as it is. Now we have to do question number 7. Okay, we have to find the value in that first one, A. Okay, first one, find the value of 1/2 of, in that first one, 2 and 3/4, and in that second one also 4 and 2/9. Okay, so the meaning of 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 in maths, that is multiply. So we have to do 1/2 of, that means multiply in that first one 2 and 3/4. 1/2 multiply, here we have mixed fraction, so convert into simple fraction. 4 2s are 8, 8 plus 3 11, 11/4. Okay, now again here we have both numerator and denominator, and here also, so multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So 11 1s are 11, 4 2s are 8. Okay, these number cannot be reduced. Okay, so this one is our answer. यहाँ पे numerator and denominator दोनों कोई भी एक ही टेबल में नहीं आते हैं, तो ये सेम रहेगा. तो ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट वन. नाउ सेकंड वन है 1/2 ऑफ, ये सोल्व कर लिया. अब सेम एज इट इज 1/2 ऑफ दीज वन. सो 1/2 ऑफ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 4 and 2/9. 1/2, 9 4s are 36 plus 2 38/9. 38 1s are 38, 9 2s are 18. Here both numerator and denominator, okay, last digit is even number, so both will be reduced and divide by the number 2. So here it will become the 19 and here 9. Okay, these number cannot be again reduced from, so this one is our answer. Now question number 8. Okay, question number 8 is like that. You can see the questions also here. Okay, Vidya and Pratap went for a picnic. Vidya and Pratap है वो पिकनिक पे जा रहे हैं. Their mothers give them a water bottle that contains 5 liter of water. Okay, उसकी मदर ने उसको 5 लीटर पानी की बोतल दी.
विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर। ओके, विद्या ने कितना यूज किया? कंज्यूम दैट मीन्स यूज करना, 2/5 ऑफ वाटर। एंड प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। अब 2/5 के अलावा जो पार्ट बचा है वो यूज किया प्रताप ने, कंज्यूम यानी उसका यूज किया। तो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन फाइंड करने। फर्स्ट वन, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? विद्या ने कितना पानी पिया? एंड सेकंड वन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? कितना फ्रैक्शन में प्रताप ने पानी है वो पिया होगा, ये हमें आंसर फ्रैक्शन में बताना है। ओके, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है वो लीटर में है। ओके, लेकिन सेकंड का आंसर हमें उसका बताना है फ्रैक्शन में। ओके, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ओके, विद्या कितना कंज्यूम करती है? टोटल हम उसकी मदर ने जो बोतल दी है वो है 5 लीटर की। ओके, बोतल कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। ओके, उसमें से विद्या कंज्यूम करती है 2/5 ऑफ वाटर। ओके, एंड रिमेनिंग है वो प्रताप कंज्यूम करता है। तो हम फर्स्ट का हम आंसर फाइंड करें कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? विद्या ने कितना पानी पिया होगा? तो हमें पता है विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर पानी कंज्यूम किया है, लेकिन ये 2/5 फ्रैक्शन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। ओके, 2/5 ऑफ वाटर। ओके, तो 2/5 ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में? मल्टीप्लाई। और वाटर, वाटर टोटल कितना है? 5। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 10/5, सो इट विल बी 2। तो विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया होगा? 2 लीटर। ओके, सो विद्या ड्रिंक 2 लीटर of 2 liter water. Okay, now second question. What fraction of quantity of water did प्रताप drink? प्रताप ने कितना पानी पिया होगा? ओके, तो जो टोटल वाटर है उसमें से हम विद्या का जो फ्रैक्शन है ओके वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रताप का। ओके, तो याद रखना डियर फ्रेंड्स कि कोई भी फ्रैक्शन है ना वो पूरा तब होता है जब वो 1 बनता है। इन शॉर्ट जो भी फ्रैक्शन बनते हैं उसका टोटल 1 होता है। ओके, तो कोई भी फ्रैक्शन का होल पार्ट, पूरा पार्ट 1 होता है। तो यहाँ पे भी समझ लो कि जो पूरा पानी है ओके, यहाँ पे जो 5 लीटर दिया है वो उसका पूरा क्वांटिटी है। ओके, कि 5 लीटर, लेकिन हमें यहाँ फ्रैक्शन में फाइंड करना है। तो कोई भी फ्रैक्शन अपने वो खुद का एक पार्ट होता है, उसका टोटल पार्ट ऑलवेज 1 होता है। ओके, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन का कोई पार्ट दिया है और रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है तो आपको ऑलवेज उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देने का। क्या करने का? ऑलवेज 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देने का। कभी जब हमें फ्रैक्शन फाइंड करना हो, याद रखना जब फ्रैक्शन करना हो तभी। ओके, तो पूरा पार्ट हो जाएगा 1, उसमें से विद्या ने कितना फ्रैक्शन यूज किया था हमें क्वेश्चन में दिया है 2/5, तो उसमें से हम पूरी क्वांटिटी में से अगर विद्या का सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो प्रताप ने पानी पिया है वो मिल जाएगा। तो 1 - 2/5। ओके, तो यहाँ पे माइनस है, याद रखना। ओके, तो या तो आप 5 है तो एलसीएम ले लो तो यहाँ 5 हो जाएगा, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये इजी रहेगा यहाँ पे हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, 5 1 ज़ा 5 माइनस यहाँ पे साइन तो माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर का यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 5 1 ज़ा 5, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया।
5 वन जा 5, माइनस की साइन है तो माइनस, 2 वन जा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 वन जा 2, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 5 वन जा 5। नाउ 5 माइनस 2 3 एंड डिनोमिनेटर में 5, तो ये हमें मिल गया जितना प्रताप ने पानी ड्रिंक किया। सो 3/5 ऑफ water. Okay, so Pratap drink 3/5 of water.